Hello everyone, this is Shubha Sachdeva from Kendriya Vidyalaya number 1 Roorkee, and I am taking lesson of macroeconomics balance of payment. In my previous videos, I have explained to you about balance of payment meaning, introduction, capital and current account, the components of balance of payment, distinguish between balance of payment, balance of trade, current account, capital account, and autonomous and accommodating items. Today in this video, I'll be discussing some of the numerical problems of balance of trade, disequilibrium of balance of payment, and I'll test your knowledge by some MCQs. So let's start with the numerical problems of balance of trade. So here numerical ability zone. Our first problem is, in a year total imports of goods are rupees 50,000 crores and exports are 65,000 crores. Find the balance of trade. Now we know that balance of trade means we minus the import from the exports. BOT is equal to exports minus imports. Exports में से imports को जब हम घटा देते हैं. Exports means the amount we are receiving, inflow. Inflow में से हमने outflow को कम करना है. So here total imports of goods are 50,000 and exports are 65,000. So balance of trade will be BOT is equals to exports minus imports. Putting the value here. Exports are 65,000, imports are 50,000, and by subtracting 50,000 from 65,000, we get balance of trade 15,000. This is very easy problem of this BOT. I hope this is clear to you. Come to the next question. इसका देखो, हाँ एक चीज और इसको नीचे बता रखा है. This shows surplus balance of trade because inflow is more than outflow. Inflow means export. Export किया, पैसा अंदर आया. तो inflow is more than outflow. So this is surplus balance of trade. Another problem, in a year receipts from visible items are rupees 20,000 crores. जो receipts है, that means again inflow are 20,000 and outflow, payment is outflow, outflow is 32,000. Here we can see that outflow is more than inflow. ये तो समझ में आ गया कि balance of trade क्या होगा, deficit होगा, कम होगा, negative जाएगा. So balance of trade is equals to receipts minus payments. Value put किया, रिसिट्स कितना है 20,000. 20,000 में से 32,000 जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 12,000. माइनस 12,000 मीन्स BOT is in disequilibrium, is in deficit. Deficit means unfavorable BOT. So here inflow is less than outflow. Next problem, if exports are rupees 10,000 crores, exports हमारे 10,000 crore. Exports मतलब we are talking here about inflow of foreign exchange. हमने सामान बेचा, inflow of foreign exchange आया. In this, inflow of foreign exchange is 10,000 and unfavorable BOT is rupees 3,000. Here already given unfavorable BOT. That means deficit BOT. Deficit BOT means this 3,000 is in negative term, minus 3,000 crores. So find the value of imports. Here imports are not given, value of outflow is not given. We have to calculate it. So the formula is export minus import. अब BOT नेगेटिव में क्यों लिखा है, क्योंकि अनफेवरेबल यहाँ पे दे रखा है. एक्सपोर्ट्स हमारे हैं 10,000 के. अब इसको आया कैसे, पूरा मैं एक साथ दिखा देती हूँ आपको. एक्सपोर्ट्स हमारे हैं 10,000 के, इंपोर्ट्स हमें निकालने हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज अनफेवरेबल, दैट्स व्हाई minus 3,000. एंड व्हेन दिस minus 3,000 goes to the right hand side, it becomes plus, and when this imports goes to the left hand side, it becomes plus. Because it is negative here, it becomes plus. Change in the sign, and the answer is 13,000. Maybe 13,000 is not visible to you. It is after my video. So the answer is 13,000. I hope it is clear to you. Now, 3 questions are enough. What is disequilibrium? Disequilibrium means when there is either surplus or deficit. या तो surplus है या फिर deficit है situation हमारी BOP के अंदर. या तो inflow ज़्यादा है या फिर आउटफ्लो ज़्यादा है. अब ये डेफिसिट की हमारी इंडिया जो है मोस्टली डेफिसिट BOP पे चलती है. रीजन बीइंग हमारी अभी डेवलपिंग कंट्री है. तो इसके कॉजेज क्या होते हैं, एडवर्स डिसइक्विलिब्रियम के. एडवर्स मींस नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम. डेफिसिट क्यों आता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, सोशल फैक्टर्स की वजह से और पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से. तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं. पहले हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला है लार्ज स्केल डोमेस्टिक डेवलपमेंट. हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम जो भी डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए. हमको जब हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम व्हाट वी विल डू, वी विल इंपोर्ट दैट टेक्नोलॉजी. एंड व्हेन वी विल इंपोर्ट दैट टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेटली विल गो
outside, that is outflow of foreign exchange. So this will create a deficit BOP. So here required import of huge quantity of capital goods, technical knowledge and essential raw materials. It increases imports and outflow of foreign exchange increases, and which makes BOP unfavorable. Like for an example, मेट्रो रेल जब बनी थी तो 200 किलोमीटर तक का कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए 200 करोड़ रुपीस लगे थे 1 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, सॉरी फॉर दैट, 1 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन के लिए 200 करोड़ रुपीस लगे थे लगभग। तो इतना पैसा हमारा बाहर जा रहा था 1 किलोमीटर के लिए। तो उस टाइम पे हमारा क्या था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वी वर नॉट हैविंग कैपिटल गुड्स, वी वर नॉट हैविंग द टेक्निकल नॉलेज ऑफ इट, तो हमको बाहर से इसे इंपोर्ट करना पड़ा था। तो इस सर्विसेज को भी इंपोर्ट किया, गुड्स को भी इंपोर्ट किया, तो जो पैसा हमारा था वो आउटफ्लो हुआ, इसी वजह से हम डेफिसिट में गए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर में ही हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अगर हमारी कंट्री के अंदर हाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर हाई। क्यों हाई है? चाहे रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है या लेबर महंगी है, किसी भी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, चीज महंगी यहाँ पे मिल रही है तो लोग, यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज महंगी मिल रही है। इम्पोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो बढ़ेगा, प्लस जो बाहर के लोग यहाँ से लेते थे वो अब यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी चीज ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कम होने से इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, पैसा आएगा ही नहीं जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, और इंपोर्ट हम ज्यादा करें तो जो हमारे पास रिजर्व है वो बाहर चले जाएंगे, आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, एट द सेम टाइम डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इंक्रीजेस, तो इस वजह से हमारा डेफिसिट बीओपी हो जाता है। अब हम आ जाते हैं कुछ सोशल फैक्टर्स पे। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब देखो आज की डेट में हम सभी का यही है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे चेंज आता है, अरे भाई इंपोर्टेड आइटम है ले लो। तो इंपोर्टेड आइटम का इतना ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट है कि हमारा इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर कि हम लोग उसे ले ही लेते हैं। तो पैसा ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। हम लोग ब्रांड्स पे ज्यादा चढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हमको लगता है इंपोर्टेड आइटम है, क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो पैसा सारा हमारा आउटफ्लो हो जाता है। सो ड्यू टू द पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट इंक्रीजेस एंड द बीओपी विल बी अनफेवरेबल, बिकॉज with the increase in import, outflow of foreign exchange increases. Like an example is given here, Chinese goods are quite cheap. Obviously, Chinese phones जब आए थे कितना चले थे। Now here are some social factors. Another social factor is, first was affect change in taste and preferences. Another one is high population growth. जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ेगी और डोमेस्टिक डिमांड को हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाएगी, हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन करें वो पूरा नहीं कर पा रहे, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग इंपोर्ट करेंगे, हम बाहर से डिमांड करेंगे। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कंजम्पशन डिमांड राइजेस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सो इंपोर्ट राइजेस। अब इंपोर्ट राइज हो रहा है, इट विल रेज द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, एंड व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स विल इंक्रीज, डेफिनेटली आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज विल आल्सो इंक्रीज, रिजल्टिंग इन द डेफिसिट बीओपी. Now one political factor is here. Political instability and disturbances can lead to आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उन्हें हमारी पॉलिटिकल फैक्टर्स पे भरोसा नहीं है तो क्या होगा, वो लोग अपना पैसा यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे सारी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अब आप देखो चाइना से जब ये फैला तो बहुत सारी कंट्रीज ने चाइना से अपने काम को बाहर निकाल लिया कि हमें चाइना के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाइना में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो सारा पैसा चाइना से बाहर निकाल लिया गया। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अब चाइना के अंदर जो कैपिटल थी, फॉरेन कैपिटल लगी हुई थी, वो सब बाहर आ गई। तो ये हमारे साथ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर समझो कि जब सामने वाले को आपकी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भरोसा नहीं होगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेगा। जब इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारी ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा, डेफिसिट बीओपी हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप ऑल द फैक्टर्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम आर क्लियर टू यू। फ्रॉम नाउ I'll test your knowledge. So one by one we'll study some questions. Who out of the following is not included in residents in BOP transactions? Residents के अंदर कौन नहीं आता है? Firms, foreign military personnel, government agencies, individual. अब देखो सामने सीधे सीधे लिखा हुआ foreign military personnel, जो बाहर की पर्सनल है वो यहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स में काम नहीं करेगी। एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दे रहा है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का जो हमारी रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री में हो रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिस पूरे चैप्टर को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम चलता ही रहता है, वो कभी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करते। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड इन
इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पैसा आ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इनफ्लो को हम कहाँ लिखते हैं, पॉजिटिव क्रेडिट साइड. नेक्स्ट इज व्हेन रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट. रिसीट्स इनफ्लो इज मोर देन पेमेंट, आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज्यादा है, तो बीओपी क्या होगा हमारा, सरप्लस. Then unilateral transfers are also known as one-way transfers. Unilateral, one-sided. जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स one-sided हो गए. Now balance on balance of trade. जो balance of trade का balance है, क्या वो सरप्लस हो सकता है, या बैलेंस्ड ही रहता है, या डेफिसिट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. Either it can be A, B or C, all the three. Next question. Which of the following is not a component of balance of payment? Balance of payment का component नहीं है. Current account we have studied, capital account we have studied, but nominal account is not the component of balance of payment. Next, exports and imports of goods are also known as import of goods. Here we are talking about visible goods. It is visible trade. So dash transactions are undertaken to cover the deficit or surplus in autonomous transactions. जितनी भी autonomous transactions हुई हैं, उसमें हमारे BOP के अंदर अगर deficit आता है या surplus आता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी transactions ली जाती हैं, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस. और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी लेती है, उसका दूसरा नाम क्या है, अकोमोडेटिंग आइटम्स, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये एक्सपोर्ट की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये इम्पोर्ट की वैल्यू. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स का पूछा है तो इट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट इज which item is an invisible item in balance of payment account. Invisible, export of food grains दिखते हैं, crude oil दिखेगा, steel दिखेगा, but banking services नहीं दिखेंगी, तो banking services is invisible items. Next is which one deals with the debts and claim. Assets and liabilities की बात कर रहे हैं, assets and liabilities के साथ कौन डील करता है, capital account. Next question, capital account may be private capital, banking capital, official capital. Yes, it can be all the capitals. प्राइवेट भी हो सकती है, बैंकिंग भी हो सकती है, और ऑफिशियल भी हो सकती है. नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू. करंट अकाउंट में कौन से आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आता है. इसमें क्या नहीं आता, कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं आती. सो ये ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस ऑन. अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस किस पे होता है, करंट अकाउंट पे होता है, कैपिटल अकाउंट पे होता है, दोनों पे होता है, किसी पे नहीं होता. अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हम वो ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट लेती है या मॉनेटरी अथॉरिटीज लेती हैं जिससे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क पड़े, तो ये होता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ऊपर. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस ऑन. ये दोनों पे चलता है, कैपिटल पे भी और करंट पे भी. आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा कि कैपिटल पे भी चलता है और करंट पे भी चलता है, दोनों पे चलता है. फिर डैश ट्रांजेक्शन अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट. ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सी ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं डेफिसिट या सरप्लस ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन की वजह से हो, तो अकोमोडेटिंग. नाउ हियर योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. दैट्स ऑल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू, मस्ट बी क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.